قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب ولوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي ونبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أطلع معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजलूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलिन अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शिअतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली इज़ा वल्लाहु फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलिन अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शिअतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मा व ला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला व ख़ज़ल्लाहु हाजता। फ़क़ाल अली इज़ा वल्लाहु फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिअतुना फ़ाज़ु सुइदु फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हारन में आकर सकीना पुकारी घर चलो भाई मेहंदी लगा बने क़ासिम बहन तुम पवा रे घर चलो भाई मेहंदी लगा। कैसी शादी क़यामत आई हुई दूल्हा दुल्हन में जुदाई ने अपना मलेने भाई क्या जल्द घर से सिधारे रस्म पूरे हुए ना हमारे मुंतज़र है बरा मुंतज़र है बरा जोड़ा शादी का तन में नया है सो वो ज़ख्मों से पुरज़ेब हुआ है खून सब दस्तों पा में खून सब दस्तों पा में लगा है घर चलो भाई मेहंदी लगा। क़ासिम जो हम शबी है जनाब अमीर था इस वजह से वो ग़ीरते अकबर से कहा फिर प्यार से वो हाथों को गर्दन में डाल के कहते थे क़त्ल होंगे हम 18 साल
दौरे जफा चले और यहाँ से पेशवाई को अहले वफा चले। आए खुदा की सिमत से सोए खुदा चले। कहते थे शायद और मुक़द्दर से क्या कासिम रहे और अकबर अब्बास रह गए। 72 तन में 3 जवाब पास, 72 तन में 3 जवाब पास रहे। इस गम से जो हुसैन की हालत हुई तबाह, तब हाथ पकड़े खैमे में कासिम अल्लाह शाह। ज़ैनब से फिर ये बोले इमाम फलक पना दरपेश हमको आज, दरपेश हमको आज दबे कसो। तकरीब सोगवारों में दुल्हन की है ज़ैनब, ज़ैनब उठो उठो वसीयत सा। इब्ने हसन को लाके लिबास हसन पिना, कासिम की माँ को मादरे कुबरा को जान दिला। वो बोली जान बूझ के भैया ना ये सुना, इस काम के लिए तो किसी और, इस काम के लिए तो किसी और को। मातम के घर से कोई भी जाता है, ब्याह में बेटो मवी का कोई बुलाता है, बेटो मवी का कोई बुलाता है ब्याह। जिन हाथों से के बेटों की लाशें उठाऊं मैं, उन हाथों से भतीजे को दूल्हा बनाऊं मैं। फर्श अज़ा जहाँ पे मातम बिछाऊं मैं। कुबरा को लिबास, कुबरा को लिबास रोसी बिना चौकर भला ये उससे हो जो खैर खा हो। मेरी तो ये दुआ है मुबारक ब्याह याद बखैर फातिमा सुगरा नहीं यहाँ। रुखसत के वक्त कहती थी उसे वो नातमा कासिम का ब्याह होवे। सफर में जो नागहा तुम मुझको याद करके बुला लियो, तुम मुझको याद करके बुला लियो। अफसोस की जगह है कोई नाम पर नहीं। कासिम का ब्याह होता है उसको खबर, कासिम का ब्याह होता है उसको खबर नहीं।
रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फ़ातिहा मस्बूक़तन बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ताहा व यासीन व रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन क़ाल हाज़िहिल कलिमात या मालिकल मुल्क या हाज़िमल अहज़ाब या मुसब्बिबल असबाब या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब लना सबबन ला नसत लहू तलबा बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह व बिहक़्क़ि मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला सय्यदिल मुतहहर व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गदंफ़र अबी शुबैर व शबर अबिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन असियम अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अल-हुज्जति सानी अशर अल-महदीयिल मुंतज़र व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलवात पढ़े सलामती इमाम के लिए। तमाम ज़ायरीन हुसैन इब्न अली की हिफाजत के लिए और हम सबको ज़ियारत हुसैन नसीब होने के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस अज़ा सरकार सैयद शुहदा 14 और 15 मुहर्रम 8 बजे शब बमकाम दर अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम हैदराबाद। मुबय्यन मजलिस ज़ाकिर नबद मौलाना अब्बास अली खुई साहब बउनवान माराही तो इल्ला जमीला बयान फरमाएंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का अहतमाम है। चश्मबरा सेवियर फाउंडेशन आप हज़रात से मारूज़ा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ व सलवात बुलंद तरीन आवाज़ में पढ़ें। रिवायत में सबसे ज़्यादा जो नफ़ा बख्श सामान है बरज़ख में कई चीज़ें हैं, उनमें एक चीज़ है बुलंद आवाज़ से सलवात अला मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, गौर से अपनी बात को कल की बात से रब्त देते हुए आगे बढ़ाऊँ। 6 दिन जो मैंने मेहनत की, आज उस बात का ख़ुलासा जहन में लेकर चलें। पूरी 6 दिन की मेहनत आज, फिर इसके बाद 2 दिन की मजालिस में इसका जो असर है उस पर गुफ्तगू होगी और जो हमारा कल्चर है। पहली ही चीज़ मैंने बताया आपके दरमियान, फ़ितरत में अल्लाह ने मोहब्बत को भी रखा, नफ़रत को भी रखा। दूसरी मजलिस में मैंने बताया कि अगर मंज़र जमील और हसीन और ख़ूबसूरत हो
तो वो अपनी तरफ जाजिब करता है, और अगर करीहुल मंज़र बुरा मंज़र हो तो इंसान उससे बचता है, दूर होता है, इज्तिनाब करता है। तीसरे दिन बताया कि मोहब्बत कानून मांगती है, इसलिए कि अगर लाकानूनियत हो तो जज्बात बहकर शरीयत को पामाल कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने कानून बनाया, ना आगे जाओ ना पीछे रहो। जहाँ नबी अली की विलायत का ऐलान करे हैं, हाजी भी हो तो वापस आना होगा, पीछे हैं तो आगे आना होगा, ताकि हद-ए-इत्तिदाल का नाम विलायत अली है। उसी की बात को मैंने फिर आगे बढ़ाया और आपको बताया है कि शरीयत में अक़ीदा और है, अक़ीदत और है। अक़ीदा मोहताज है अम्र इलाही का, हुक्म नबी का, हुक्म शरीयत का। अक़ीदत में क्या है का, अक़ीदत में शर्त यह है कि ख़िलाफ़ शरीयत ना हो और जो करे उसे शरीयत ना कहे। आखिरी जुमला, अक़ीदा पूरी दुनिया के शियों का एक होगा, अक़ीदत सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी। यहाँ तक मैंने बात पहुँचा दी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ अज़ीज़ों। ये तमाम मोहब्बत जो इंसान कानून के लिहाज से रख कर करने पर और उसके असर मुरतब होने पर इंसान की ज़िंदगी में असर क्या होगा, और ये मोहब्बत आती कहाँ से है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मोहब्बत, हमारे लफ्ज़ अहले बैत ने भी इस्तेमाल किया, आयत में भी आई, लेकिन एक लफ्ज़ है विलायत। वलायत विलायत, बाद लोग ज़ेर ज़बर के साथ फ़र्क करते हैं, लेकिन मक़त नज़र फ़ुरुक़ात लग़वी के जब भी विलायत इस्तेमाल हो जाए तो उसमें रिवायतें कहती हैं दो पहलू होते हैं, एक है मोहब्बत का और एक है अदावत का। इमाम फरमाते हैं अगर विलायत का मतलब ये है कि जैसा तवल्ला हो वैसे तबर्रा होना चाहिए। अगर कोई कहे नहीं हम तवल्ला करेंगे तबर्रा नहीं करेंगे, इमाम कहते हैं उसने खुद को भी धोखा दिया और हमारी विलायत का दम भरा, लेकिन ना मौला ही है ना मुहिब है ना ही वो मुत्तकी और परहेजगार है। इसलिए कि जो खुशी में हमारे साथ खुश हो जाए और मजलूमियत के वक्त साथ न दें, आप उसे अपना नहीं कह सकते। मैं इससे ज़्यादा और क्या वाज़ेह करूं अजीज़ों। अगर कोई दोस्त आपके दम भरे जब तक पॉकेट में पैसा है, बड़ी तारीफ है हुजूर आपका क्या कहना, अरे आपके अंदर तो सिराजुद्दौला की रूह है, शुजाउ दौला के कदम चूमेंगे, ऐसे अंदाज की सखावतें। लेकिन जैसे ही मुसीबत आई वैसे फरार हुआ जैसे कोई हिरन भूखे शेर को देखकर भाग जाए। तो आप उसको अपना चाहने वाला कहेंगे या नहीं? अब समझ में अज़ीज़ों, यही शरीयत कह रही है। अगर मोहब्बत का दम भरने से अपने हो जाते तो बहुत से अपने निकल आते हैं। कम मोहब्बत के दम भरने वाले हमारे नहीं हैं। हमारी मोहब्बत में मोहब्बत करें और हमारे दुश्मनों से दुश्मनी करें। अगर तुम दुश्मनी नहीं करते तो समझना जरूरत के वक्त करीब आए, मुसीबत के वक्त करीब ना आए। है अजीजों, अब उसके लिए जहां तवल्ला तबर्रा मिलकर आया उसके लिए लफ्ज़ है विलायत। और विलायत तो सबके पास होना चाहिए, कायदतन, अक़लन, शरअन, उर्फ़न, हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन जिनके पास रही उनको लफ्ज़ शिया से ताबीर किया गया। शिया कौन का? जो तवल्ला करे, जो तबर्रा करे। तवल्ले में भी कायदा है, तबर्रे में भी शर्त व शराइत व ज़वाबित है।
कहाँ कैसे किस अंदाज में करना है। तो कुछ ऐसी आंखें जो सुरमे की आदी है, उन्होंने कह दिया ये तो शिया नाउज़ुबिल्लाह खातम बदहन यहूदी के अकीदे को फॉलो करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने सबा नामी था, वो यहूदी था, उसकी वजह से शियत आई। इन्होंने अपना दावा साबित करने कहा। किसी ने मिसवाक के साथ फुर्सत में बैठकर कह दिया जब से हुसैन इब्ने अली ने ईरान में अक़्द फरमाया शहरबानों से, यज़रज की बेटी से, तब से ये शियत आई, वरना अरब में शियत का लफ्ज़ न था। गौर से लफ्ज़ सुनिएगा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्होंने कह दिया क्या, जब से अक़्द हुआ ईरान से आई है शियत। किसी ने अब्दुल्ला इब्ने सबा से, किसी ने कहा बादस करबला कुछ लोग जज्बात में आए, उन्हें शिया कह दिया गया। कुछ तो और हद से बढ़ गए, कहने लगे जो अली को खुदा माने वो शिया। शिया कौन? कहा कि अली को खुदा मानते हैं। अजीज़ों, हमारी किताबें उठाएं, नहजुल बलागा उठाएं, पहला खुतबा खुतबे तौहीद है। शिया नमाजें पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं। हम सजदा भी करते हैं, काबे की तरफ रुक कर कर करते हैं। हज भी जाते हैं तो बैतुल्ला जाते हैं। हम अली को खुदा कैसे कह सकते हैं? फिर भी लोग कहते नहीं अली को खुदा कहते हैं। अब मैं रुक कर जुमला कह रहा हूँ अजीज़ों, फ़र्क इतना है, तुमने नबी को अपने जैसा समझा, अली को भी अपने जैसा समझा। या जुमला बदल कर कहूँ, खतीब अकबर का जुमला है, तुमने नबी को अपने बज़्म में सुना, इसलिए नबी अपने जैसा दिखा, और अली को हमारी बज़्म में सुना, इसलिए अली तुमसे हदम न हुए। अगर तुम हमारी बज़्म में आते, जैसे अली वैसे नबी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लफ्ज़ों पर बाकी रहिएगा अज़ीज़ों। कहते कैसे ये वैसे वो वैसे, कभी आओ, कहते ये आते हैं सिर्फ अली करते हैं, मजालिस में अली, महफिल में अली, हर जगह अली अली करते हैं। कभी आपने तासुब का चश्मा हटाकर शियों को देखा ही नहीं। अगर आप शियों को शियत के एतबार से देखते तो नबी भी समझ में आते, अली भी समझ में आते, लेकिन सिर्फ उनके फ़ज़ाइल के नाम समझ में आते हैं, वरना वो ज़ात वो बुलंद बाला है, न तुम्हें समझ में आएंगे न तुम्हारे अच्छों को समझ में आने वाले हैं। इसलिए कि नबी ने फरमाया अगर अली को समझना है तो या खुदा चाहिए, और मुझे किसी ने नहीं समझा सिवाय खुदा के और अली के, है अजीज़ों। लेकिन तासुब का चश्मा है, हम देखते हैं ये नबी मोहम्मद की तारीफ़ नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़े, लफ्ज़ों पर गौर करिएगा अजीज़ों। गदीर हम बयान करते हैं या नहीं करते? हम आपसे गदीर बयान करने से पहले एक जुमला पूछ लूँ। आलम तुफूलियत में बच्चे जब छोटे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ दो तो नहीं पकड़ सकते। का क्यों? क़ुव्वत कब्ज़ जो है, हाथ में काबिज़ होने वाली ताकत जो है कम रहती है, लेकिन जैसे बढ़ते हैं वैसे मजबूत होते जाती है। पहले घुटनों के बल, कोहनियों के बल, फिर अपने पैरों के बल चलते हैं। जब अपने साथ चलने लगते हैं तो और मजबूती के साथ चलने लगते हैं। लेकिन 12 बरस का अगर बच्चा हो और अगर आप उसे 100 किलो वज़न दीजिए, उठाओ,
तो वो शेखी में तो आ जाएगा आने की। बड़े कहेंगे बेटा मत उठाओ, हड्डी ना टूट जाए, पसली ना टूट जाए। क्या क्यों? इतना वजन तुम्हारे बदन की साख्त में नहीं है मेरे साथ अजीज। लेकिन अगर 18-20 बरस जिसके बाजू मजबूत हो, उससे कहें 30 किलो उठाओ, फौरन उठा लेगा। 50 किलो उठाओ, वो भी उठा लेगा। और अगर आप उससे कहिए 100 किलो उठाओ, उठाएगा, लेकिन थोड़ा चेहरा बनाकर और कुव्वत लगाकर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ताकत बढ़ती जाती है, वजन उठाने की कैफियत अलग होती है। लेकिन अगर 40 बरस का हो तो बेहतरीन ताकतवर होता है। लेकिन जैसे ही 50 बरस के होने लगते हैं, जैसे बचपन की सिफत थी वही पलट आती है। अब वजन ज्यादा नहीं उठा सकते। क्यों? 50 बरस के ज़ईफ हैं। अगर 60 बरस के हो जाएं, का हुजूर अब तो 10 किलो भी उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ईफी आ गई है। समझ में आना अजीजों? जब उम्र बढ़ती है तो वजन उठाने की ताकत कम हो जाती है। मुतवज्जे हैं? अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं अजीजों, ज़हन में रखना। जब उम्र बढ़ती है तो वजन उठाने की ताकत कम हो जाती है। खैबर में 1 को भेजा, 2 को भेजा, 3 को भेजा, नबी ने कुछ को भेजा, जाओ लड़ कर आओ, खैबर का दर फतह करो, किला फतह करो। वापस आए का मरहब है, और उन्होंने दरवाजे के सामने रास्ता खोद दिया, सवारी जा नहीं सकती। अब करें क्या? 1 दिन बाकी था, अगर 40 दिन हो जाते तो इस्लाम का चैन हो जाता। क्या करना क्या होगा? का नबी ने कहा कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। नबी ने अमीरुल मोमिनीन को अलम दिया। अब जब अली अलम लेकर चले, और से जुमले सुनिएगा अजीजों, तो बीच में एक साहब मिले। कहाँ जा रहे हैं? खैबर के लिए। तो आगे शेख आज़म अंसारी रहमतुल्लाह ने रिवायत नकल की, कहते उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा, गौर से जुमले सुनिएगा अजीजों, कहते या अली आप ना जाइए। मौला ने कहा क्यों? कहा सितारे फला बुर्ज में हैं, आप जाएंगे तो मुमकिन है शिकस्त हो जाए। इमाम ने कहा तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। इमाम गए, जो दरवाजा 40 आदमी ढकेल कर खोलते थे और ढकेल कर बंद करते थे, 2 हिस्से बंद हो तो 80 आदमी की जरूरत है। मुतवज्जे रहिएगा, जिस दरवाजे को 40-40 आदमी मिलकर बंद करते थे, अली गए, खैबर को उखाड़ा और लश्कर को पार किया। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूं, ज़हन में रखिएगा। फिर जब वापस आए, आकर कहते हैं क्या हुआ? जंग तो हम जीत गए, सितारे कहाँ थे? तो कहता अली आप जानते थे कि फला सितारा 5000 साल के बाद इस बुर्ज में आता है, उसका असर ये होता है और पत्थर नरम हो जाते हैं, तब आप वो जानते थे, लिहाजा अलम भी आपने नस्ब कर दिया। इमाम ने कहा अच्छा। अब देखें आप तारे वाले कैसे कैसी गुफ्तगू करते हैं। इमाम ने कहा अच्छा, अब ये तारा दोबारा कब पत्थर बनेगा, मैं दोबारा गाड़ दूं अलम? का 5000 साल फिर गुजरने के बाद होगा। इमाम ने कहा तुम यहीं रुको। फिर इमाम पलटे, जो पत्थर अलम पर गाड़ा था, अलम पत्थर पे जो गाड़ा था, अलम निकाला, इमाम ने फिर बुलंद किया तो खुद
जो मोहब्बत में बैठा दौड़ते हुए आकर कहता अली गजब हो गया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कभी इधर गया कभी इधर। का क्यों? का जैसे आपका अलम हो वैसे जा रहा है वैसे आ रहा है। इमाम ने दोबारा नज्म करके कहा सुन, इनके मुकद्दर बनाने से हमारे मुकद्दर नहीं बनते। अब मैं जुमला कहूं दी दो, अब कभी ये ना कहना तारा इसमें है सारा उसमें है, ना सारा है ना तारा है, बल्कि तुम्हारे मुकद्दर का मसला है। अपने अकीदे को तारे के हवाले ना करो, सितारों के हवाले ना करो। तारे सितारे जिनके दर पर सजदा करे उनसे अपने अकीदे बनाओ। सरवाल बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है अजीज़ों मुतवज्जे, अब 40 आदमी किसका दरवाजा बंद करते थे? खैबर का। उठाया किसने? अमीरुल मोमिनीन ने। रिवायत क्या है? जब अली ने उठाया तो हथेली पे उठाया, हाथों पे उठाया। अगर वजन कम हो तो उंगलियों से उठाया जाता है, ज्यादा हो तो उंगलियों को जोड़ के उठाया जाता है, और अगर ज्यादा हो तो खांधे पे उठाया जाता है, और अगर ज्यादा हो तो सर पर रखकर उठाया जाता है। लेकिन अगर वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो इंसान पुश्त का सहारा लेता है। अली ने दरे खैबर पुश्त से नहीं उठाया, अली ने बाजू का सहारा नहीं दिया, अली ने दरे खैबर हथेली पर रखकर का खुदाया मैंने तेरी मोहब्बत में उठाया। किसी ने कहा अली के इतने अंदर ताकत है तो अली की इनके सारी सुनिया गाजी दो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं माकला तो बाबा खैबरी बेकुव्वतिल जिस्मानिया बल कला तो बेकुव्वतिल रब्बानिया। अली ने अपनी ताकत से नहीं उठाया, अल्लाह की ताकत से उठाया। तुम अली का हाथ देख रहे हो, ये अली का हाथ नहीं है, अली का हाथ यदुल्लाह है। सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली ने उठाया, इतना वजनी दरवाजा अली ने हाथों से उठाया। मेरी मिसाल मैंने इतनी मेहनत जो की वो जहन में रखिएगा दीदो। जब उम्र में इजाफा होता है, या लोगत के आवाम नास के लहजे में बोलूं, जब उम्र में इजाफा होता है जिसकी कोई वक़्त नहीं, वो अगर उठाए अली तो उसे अली कहते हैं। खैबर में नबी ने उसी अली को बुलाया और अमीरुल मोमिनीन को पहलू में रखकर नहीं कहा मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला ये अली उसके मौला। नबी ने नहीं कहा, बल्कि रिवायतें कहती है नबी ने अपने हाथों से अली को उठाया। अब अजीजों जो कहते तुम अली अली करते गदीर बयान करते हैं, नादान तुझे नहीं मालूम है, गदीर में हम अली भी करते हैं नबी भी करते हैं। जब उम्र में इजाफा हो तो बुजुर्ग वजन नहीं उठाते, लेकिन गदीर में नबी 60 बरस से ज्यादा है, उठाया है तो किसी और को नहीं, उसको उठाया जो 40 आदमी मिलकर दरवाजा बंद करते, उसके उठाने वाले को अली कहते हैं, और गदीर में अली को उठाने वाले को मोहम्मद कहते हैं। सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक से बुलंद तरीन सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आए मैं फिर अपनी मौजू पे आ जाऊं। जब विलायत में तवल्ला तबर्रा मिला तो किसी ने कह दिया शिया अब्दुल्ला इब्ने सबा की इजाद है, किसी ने कह दिया बाद ज़िवाजे इमाम हुसैन ईरान से शियत चली, बाद ने कहा शिया अली को खुदा कहने वालों को कहते हैं,
बाद ने अपने एतबार से कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, शिया कब से है? गौर से लफ्ज़ से सुनिए, शिया कब से है? क्या ईरान के बाद से है? क्या अब्दुल्ला इब्ने सबा का जो अफसाना है उसकी वजह से है? अजीज़ों, हम अगर अपनी जेब से ये लफ्ज़ लाते तो हमें तावील करना होता, लेकिन हम क्या करें? जू में कभी आप जाइए तो जाना आराम से टहलते हैं, इत्मीनान से रहते हैं, पिंजरों में ही सही लेकिन इत्मीनान से रहते हैं। लेकिन उन जानवरों के सामने हकीकत का आईना रखा जाए तो अपनी ही तस्वीर देखकर भोगते हैं, अपनी ही तस्वीर देखकर चिल्लाते हैं। कहा क्यों? उन्होंने अपने आप को बड़ा हसीन समझा था, लेकिन जब आईना देखा खुद पर भोंकने लगे। हम ये नहीं कहते हम कब से है, तुम हमारे मौलवी, हमारे वकील खतीब से न पूछो शिया कब से है, हमारे कातिब से न पूछो शिया कब से है, हुसैन इब्ने अली से न पूछो शिया कब से है, हसन मुश्तबा से न पूछो शिया कब से है। अरे शरीयत जिसकी है उससे पूछो शिया कब से है। तो नबी ने कहा या अली अंता व शियातों का, ए अली आप और आपके शिया। तो पता चला जब से नबी तब से शिया। याली अंसम शियतों का हुमुल फाइजून, अली आप और आपके शिया कामयाब होने वाले हैं। तो नबी ने शियों को शिया कहा, किसी और ने नहीं कहा। अब कुछ हरे हरे होते हैं, मीठी बातें तो होती है, याद रखिए रंग रूप पे ना जाइए। इमाम ने फरमाया इस दुनिया से बचो शियो का। मौला क्यों? का ये दुनिया सांप की तरह चमकती बहुत है, दिखने में रंगीन है, नर्म और नाजुक भी है, लेकिन जब जाओगे तो सांप जब काटता है तो उसके रंग का असली असर समझ में आता है। हम इससे ज्यादा वजाहत क्या करूं अज़ीज़ों? तो किसी के मीठी गुफ्तगू पर न जाइए, किसी के इस अंदाजे पर न जाइए, अंदर जो जहर है उससे बचिएगा। जो बच्चे होते हैं वो सांप के करीब चले जाते हैं, कहा क्यों? नादान है, लेकिन अक्लमंद समझदार उनसे बचता है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं अजीजों? गौर से जुमले सुनिएगा। किसी ने कहा छोड़ दो, हम सब तो भाई है। जब भाई समझा था फिर एतराज क्यों किया था? भाई है तो भाई है, लेकिन कहते ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो, बस मुसलमान कह दो। क्या तुमने कभी सुना नबी ने कहा कि तुम अपने आप को शिया कहो? गौर से जुमले सुनिएगा अजीजों, बात लाकर उलझा दी। अपने आप को शिया कहें ना कहें, मुसलमान कह दो काफी है। अब अजीजों गौर से सुनिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये गौर से बात को जहन में बिठा लीजिएगा। जब यहाँ पर जुनूब हिंद साउथ इंडिया में इस्लाम आया, साथ में शियत आई, तो बहमनी हुकूमत यहाँ की कदीम हुकूमत थी, बहमनी। उसके बाद जब टूटी बहमनी हुकूमत तो 3 शिया रियासतें थीं। आदिल शाही जो बीजापुर उसका मरकज रहा, निज़ाम शाही अहमदनगर में उसका मरकज रहा,
और कुतुब शाही जिसके लिए हैदराबाद रखा गया। 3 हुकूमतें बनी, आदिल शाही, कुतुब शाही और निज़ाम शाही। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा अज़ीज़ों, वरना पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आदिल शाही बीजापुर में थी, निज़ाम पूना अहमदनगर के करीब, और हैदराबाद में कुतुब शाही निज़ाम की डेस्टिनेसी यहाँ मौजूद थी, यहाँ पर उसका मरकज़ था। इनके गहरे ताल्लुकात थे सफ़वी बादशाहों से ईरान के अंदर। वहीं से तबरुकात का सिलसिला, उलमा का सिलसिला यहाँ पर आया। हद ये थी कि अल्लामा शेख भाई हुर्र आमिली ने सफ़वी बादशाहों के सहारे से अपने भांजे को भेजा, तो जिसको आज हैदराबाद अल्लामा इब्न खातून कहती है, जिनकी कब्र बाहर आपके सामने मौजूद है। इतने अच्छे ताल्लुकात थे। 9 बरस तक अल्लामा इब्न खातून यहीं पर मीर मोमिन उसरबादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ज़ेर तालीम रहे। पढ़ लिख कर आने के बाद 9 बरस रहे। फिर उन्हें गोलकुंडा का सफ़ीर बनाकर गोलकुंडा की जानिब से ईरान भेजा गया। कई मरतबा एम्बेसडर बनकर गए आए। तबरुकात भी जब आए तो अल्लामा नूरुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह को बशारत हुई। 3 तबरुक के साथ वो यहाँ पर आए। 2 तबरुकात कुतुब शाहियों के लिए थे, एक बीजापुर आदिल शाह के लिए थे। हैदराबाद में जो 2 तबरुक आए वो मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ज़िरा का टुकड़ा जो बारगाह में, बड़ी बारगाह में मौजूद है, और जनाब कासिम के नेज़े का टुकड़ा वो भी बड़ी बारगाह में मौजूद है। और आदिल शाही के लिए क्या लेकर आए नूरुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह? कहते जो इमाम हुसैन लोहे का खुद पहनते थे, मैं अपने छोटे भाइयों को लिए समझाने के लिए करूँ, हेलमेट समझाने के लिए करूँ, जो जंग में बचने के लिए पहना जाता, उसमें नाक की सेफ्टी के लिए जो होता उसे नाल कहते हैं। वो वहां बीजापुर के लिए था। बीजापुर की हुकूमत में तब्दीली आई तो अली शाह करबलाई ने वो तबरुक वहां से लेकर गोलकुंडा किले आए। उसके बाद अल्लाह नाम के अलम के दरमियान वो नाल रखी गई और उस पर संदल चढ़ाया गया और उसको इस्ताद किया गया पत्थरगट्टी के बड़े नाल साहब। 160 से ज्यादा पूरे कुतुबशाही दौर में नाल साहब थे। तबरुकात इतने थे। फिर ये तबरुक आ गया तो आदिल शाही कुतुब शाही हुकूमतें बड़ी करीब थी। निज़ाम शाही, ये निज़ाम नहीं 7th ऑफ निज़ाम 6th ऑफ निज़ाम, ये नहीं, दूसरा जो वहां मौजूद थे वो पहले वो थे। इशारों को समझिएगा। इसी मिंबर से खतीबुल ईमान ताहिर जरवली साहब कहते हैं हमारी कौम अच्छे इशारे समझती है, इसलिए कि उन्हीं की बात को नकल कर रहा हूँ। गौर से जुमला सुनिएगा अजीज़ों। खतीब ईमान कहते हैं हमारे उलमा पर सलाम, उन्होंने गमे हुसैन में हमें ये करना सिखाया, अगर ये करना सिखाते शायद कोई ना बचते शियों के अलावा। वहां पर नाम याद रखें, मुल्ला ताहिर दकनी, इनका असली नाम सैयद रज़ी अल हुसैनी। ये आए आलिम थे, शुजा थे, ताकतवर थे। आए, आने के बाद अहमदनगर में अपना क़याम फरमाया। रहते रहते ताल्लुकात बने, बड़ी शख्सियत बने, आलिम बाजलील थे, जलीलुल क़द्र आलिम थे, करीब हुए। और निज़ाम शाह का बेटा सख्त अलील हो गया और उसके पास कोई दूसरी औलाद भी ना थी।
उसने सोचा अब यही बेटा मेरा जानशीन बनेगा, लेकिन अब ये सख्त बीमार है, मेरी नस्ल तो अब खत्म होने वाली है, अब मैं क्या करूं? अजीज़ों गौर से जुमला सुनिएगा, अब मैं क्या करूं? ये तभी वो इलाज, ये तावीज़, वो नज़रिया, ये चीज़, हर चीज़ कोई असरअंदाज ना हुई। सबने कहा बेटा मरने वाला है, अब क्या होगा? कदीम चापे दुव्वम तारीख़ फरिश्ते से ये नकल कर रहा हूँ अजीज़ों, किसी चाहिए तो मेरे पास मौजूद है, ले सकते हैं। गौर से जुमले सुनिएगा, किताब में जिक्र है, कहते हैं कोई इलाज कुछ नहीं हुआ। तब सैयद रजी अल हुसैनी अलमारूम मुल्ला ताहिर दकनी करीब गए, बादशाह से कहा मन्नत मांग ले, जो मैं कहूंगा वो करेगा। तो उसने फौरन कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, हुकूमत मांग ले तो मैं चलाऊंगा क्या? मुल्ला ताहिर दकीने ने कहा मैं तेरी हुकूमत का मुतालबा नहीं करूंगा। कहा फिर किसी खित्ते की रियासत? का नहीं। कहीं की ज़आमत? का नहीं। कहीं की कुर्सी? का नहीं। कहा मेरी हुकूमत पर असर ही पड़ेगा। तो मुल्ला ताहिर दकनी ने कहा ना मुझे तेरी कुर्सी की ख्वाहिश, न तख्त ताज की ख्वाहिश, न दिरहम दीनार की ख्वाहिश, बस तू वही करना जो मैं मन्नत मांग लूं। मन्नत तू मांगेगा, वही करना जो मैं कहूं। उसने कहा ठीक, खुदाया लिल्लाहि अलैया, मैं मन्नत मांगता हूं, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो सैयद रजी ताहिर दकनी कहे मैं मानूंगा। कभी बिस्मिल्लाह, सो गया। सुबह हुई, बीमार बेटा सेहतियाब होकर बाप को जगाकर कहता बाबा जागो। बाप ने आंखें खोली तो क्या देखा? बेटा सेहतो सलामती के साथ तंदुरुस्त। बाप ने सीने से लगाकर कहा कैसे? और से जुमला सुनिएगा। कहा कोई नूरानी शख्सियत ख्वाब में आए और कहते उठ। मैं उठा। कहा अब अपने आप को मरीज ना समझ। मैं हाथ हिलाया, तंदुरुस्त सेहतो सलामती के साथ। बाबा मैं खुद चल कर आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। दरबार बुलाया गया, सब आ गए, ऐसे वैसे वैसे सब आए। जैसे आए बड़ी महफिल में कहा मैंने कल मुल्ला ताहिर सैयद रजी अल हुसैनी के कहने पर मन्नत मांगी, मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं वो करूंगा जो मुल्ला ताहिर ने कहा। मुल्ला ताहिर मजमे को बताओ तुमने इरादा क्या किया? जुमले सुनिएगा दीदो। मुल्ला ताहिर कहते आज के बाद से इस हुकूमत का ऐलान शीयत के नाम से होगा। मस्जिदों में 12 इमाम पंचतन के नाम के साथ होना चाहिए। अवानों में अलियन वलीउल्लाह होना चाहिए। जैसे ही कहा, जिनके आबा अजदाद को अली भी समझ में नहीं आया, फौरन कहने लगे ये तो एक ख्वाब की चक्कर में पूरी हुकूमत बदल रहा है। यही मंजर यूसुफ सिद्दीक के साथ था कि यूसुफ ख्वाब की बुनियाद पर हुकूमत बदल रहे हो। यूसुफ ने कहा मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे अकीदत चाहिए। जैसे ही शाह निजाम ने कहा मुल्ला ताहिर तुमने ये कह दिया, लोग कहने लगे ये छुपा हुआ था, अब जाहिर हुआ। अब तुम ये ना करना जिसने जो बताया। तो निजाम आगे बढ़कर कहता सुनो वही होगा जो मुल्ला ताहिर ने कहा।
क्या तुम उसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? क्या मैं उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा हूं। जब मन्नत मांगकर सो गया तो पैगंबर अली के साथ आए, मुझसे कहा वही करना जो मुल्ला ताहिर कहे। अब हमसे ना पूछो हम अपने को शिया क्यों कहते हैं, जमाने बदल गए, लेकिन नबी और अली हर किसी को अपना शिया देखना चाहते हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद अब अजीजों हवाला समझ में आ गया, दलील समझ में आ गई। हम अपने आप को शिया पैगंबर की वजह से कहते हैं। तारीख फरिश्ता भी गवाह, पैगंबर ने कहा वो ही करो जो मुल्ला ताहिर कहे। मुल्ला ताहिर करना क्या होगा? कम मसाजिद में पंजतन 12 इमामों के नाम, खुतबों में, नमाजुमा में, खुतबों में अहले बैत के नामों पर सलवात, और अवान में अलियन वलीउल्लाह, और अय्याम आज़ा में फर्श आज़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद पर। लिहाजा लफ्ज़ शीयत में मैंने पहले कहा तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। कभी भी तवल्ला और तबर्रा दोनों मिलके शीयत बनती है। अजीजों गौर से मेरा जुमला अगर समझ में आ जाए, मैं इतनी मेहनत इसी जुमले के लिए किया हूँ। अजीजों तवल्ला तबर्रा मिलने से होती हैं, लेकिन दोनों भी शराइत के साथ हैं। अब आप मिसाल के तौर पर किसी में एक से कहूँ खड़े होइए, नाम बताइए अपने दोस्त इसमें कितने हैं, तो आप फख्र से कहेंगे ये दोस्त है, वो दोस्त है, वो भाई है, ये चाचा, ये मामू है। मैं आपसे कहूँ बताइए आपके दुश्मन कौन है? बताएंगे आप? जब अपने दुश्मन जाहिरन नहीं बताते, फिर से मैं कह रहा हूं अजीजों, अपने दुश्मन को हर जगह नहीं बताते जब तक कि ईमान वाले न मिल जाए, राजदार न मिल जाए। तो जब हम अपने दुश्मन क्यों नहीं बताते? कहा दुश्मनी दिल से होती है, जो हमराज होता है उसे सुनाया जाता है। हमराज हो उसे सुनाते हैं, लेकिन अगर आपसे सुनने के बाद बाहर जाकर बताते इसने आपके बारे में कहा ये दुश्मन है, अब ये जाने वाले को आप क्या कहेंगे? खयानतकार का क्यों? उसने आपको अपना समझा और आपने बताकर खयानत में अपने को भी जलील किया और राज को फाश कर दिया। आले मोहम्मद ने फरमाया हमारे दुश्मनों का पता एक राज है जो हम अपने शियों को बता रहे हैं। अब अगर कोई इनके दुश्मन का पता दूसरों को बताए जो अहलियत नहीं रखते, उसने खयानत भी की और बर्बादी भी की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे हैदरी, अरे सौदरी, अरे खैबरी, सलवात बावाज़े बुलंद। लिहाजा दी तो जुमले गौर से सुनिएगा। ना हमने शीयत में ना हमने बंद कमरों से इमाम लिया, ना अंधेरे में किसी की बैयत की, ना ही हमने मिन्ना अमीर मिनकुम अमीर का नारा नहीं लगाया, बल्कि कहा नेमल अमीर अली नेमत सैयदी हुसैन। हमने कहा जब भी अली को हमने इमाम बनाया नहीं, बनाना होता
तो कर्रार साहब वाइस फरमाते हैं इन्होंने अपने से पहला बना लिया। मुतवज्जे रहिएगा, अगर बनाना ही होता तो जैसे पहले को बना लिया वैसे 12वें को भी बना लेते। ना तुम 12वें को बना सकते ना पहले को बना सकते। का फिर का जैसा है उसे मानना है, बनाना नहीं है, मानना है। मुतवज्जे रहिएगा अज़ीज़ों, ना हमने बंद कमरों से तवल्ला लिया और नहीं हमने बंद कमरों में छुप छुप कर तबर्रा किया। जहां जैसा माहौल हो हमने वहां वैसा रुख इख्तियार किया। मुतवज्जे रहिएगा अज़ीज़ों, नबी तवल्ला तो समझ में आया, तबर्रा कैसे का नसरान मुबाहले के वक्त हमने दलीलें बताई, एजाज बताया, मुजज़ा बताया, फिर भी न माने। आखिर का नबी ने कहा दलील दे चुका, आयत बता चुका, सुन्नत बता चुका, का नहीं माना, का अब तुम भी आओ हम भी आएंगे, मिलकर तबर्रा करेंगे। अब जिस पर तबर्रे का असर होगा वो झूठा होगा। तो हमने न इमाम गलियों से लिया न कमरों से लिया, बल्कि अपना इमाम जहां तवल्ला मैदान से लिया वहीं तबर्रा भी मैदान से लिया। अब एक इश्काल, बाद इश्कालात ऐसे हैं जो हर साल उठाए जाते हैं सदियों से। जैसे ही मुहर्रम का चांद आता है वैसे वो इश्कालात दोबारा शुरू हो जाते हैं। मैंने भी ये बात कई मरतबा पढ़ चुका हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ों, ताकि वो बुलंद करें, हम भी जवाब देंगे। कहते इन्होंने मारा, ये रोते हैं, सर पीटते, मातम करते हैं, तौबा करते हैं। इन्होंने कत्ल किया, ये रोते हैं। अच्छा, आप नवाज़े रसूल के चाहने वाले हैं? हाँ हाँ, हम चाहने वाले हैं। जब हम नवाज़े पर रोते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या नहीं नहीं, इतना रोना जरूरी नहीं है। मुसीबत में कम रोए, ज्यादा ना रोए। मुझे ऐसी अक्ल पर हैरान है, मरने के बाद 3 दिन से ज्यादा ना रो, लेकिन गार में 3 घंटे से ज्यादा रो चलेगा। हमारा रोना समझ में नहीं, उनका रोना समझ में आता है। कहीं इन्होंने मारा, इन्होंने ये किया। अब अज़ीज़ों मिसाल गौर से जुमला सुनिएगा। 2 दोस्त जिंदगी बसर करते रहे, एक है ज़ैद, एक है खालिद। खालिद के बाप ने चोरी कर ली, लोग आए और ज़ैद को मालूम है खालिद के बाप ने चोरी की। लोग आए, खालिद, ज़ैद, ये चोरी किसने की? ज़ैद जानता था उसका बाप चोर है, उसने इल्जाम लगा दिया ज़ैद के बाप ने चोरी की। ज़ैद मुतहय्यर हो गया, कहा भाई चोर तो खालिद का बाप है, खालिद भी जानता है, इल्जाम हमारे बाप के सर दे दिया। अब इंसान से बताइए, अगर जज्बात से काम लेता तो कई महीने लग जाते साबित करने में, कई हफ्ते बीत जाते, इल्जाम बढ़ते जाता। जो जिसके चाहने वाले होते खालिद के, वो अपनी बात फैलाते, ज़ैद वाले अपनी बात। उसने कहा देखो, न मैं इनकार करूंगा न मैं सबूत दूंगा, बल्कि बदुआ करूंगा। का कैसे? का खालिद तुम भी आओ। मजमे को जमा किया, ज़ैद ने कहा मैं बदुआ करूंगा, तुम सब आमीन कहना। का ठीक है।
ज़ैद ने कहा खुदाया चोर को नीस्तो नाबूद कर दे। सबने बुलंद आवाज से कहा आमीन। खालिद का चेहरा बदला। ज़ैद ने कहा खुदाया चोर को गारत कर दे। सबने कहा आमीन। लेकिन खालिद का चेहरा बदला। आखिर में ज़ैद ने कहा खुदा दुनिया और आखिरत की उस पे लानत हो। अब खालिद को पता था चोर कौन है, फौरन कहने लगा ये न कहो मुसलमान तो है, मुसलमान तो है। कहा रहने दो खुदा पूरे मलाइका की लानत उस पर। कहा ना करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि खालिद को पता है चोर उसका बाप है। हम भी यही कहते हैं, तुम इल्जाम लगाओ हम मान लेते हैं, तुम भी आओ हम भी आएंगे, हम सब मिलकर हुसैन के दुश्मन पर तबर्रा करेंगे। हम भी आएंगे। अरे यजीद पर, कातिलाने हुसैन पर लानत करेंगे। अब जिसको यजीद आले यजीद पर लानत भेजने में तकलीफ होगी समझ लेना उसका बाप यजीद है। ये ना सोचना हमने ये काम कर दिया, हमने यजीद पर लानत कर दी। इमाम मासूम कहते हैं अगर किसी ने यजीद पर लानत भेजने में तकल्लुफ करेगा खुदा उस पे लानत करेगा। एक जवाब जो आगा रूही साहब ने दिया उसी को नकल कर रहा हूं। कहते हैं आज कुछ तीन कोड़ी दाढ़ी वाले कहते हैं यजीद को अल्लाह बख्श सकता है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह माफ कर सकता है, तुम लोग लानत ना करो। अरे यजीद को बख्शा जाएगा। आगा रूही साहब कहते हैं जब नबी के नवासे को कत्ल कर कर यजीद बख्शा जा सकता है तो हम उस पर लानत करके क्यों नहीं बख्शे जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीजों आखिरी जुमला कह चुका हूं, गौर से जुमला सुनिएगा। हर जगह नाम लेने की जरूरत नहीं होती, हर जगह बताने की जरूरत नहीं होती। फिर कहा 100 आदमी एक साथ कंपटीशन में आए, 99 सब उस तरफ के थे। मिसाल बराए मिसाल है, एक इधर वाला था, दूसरा हल्का आया कंपटीशन में, उसमें भी 100 थे, 9 उधर वाले थे, एक इधर वाला था, 2 दस्ते हुए। अब कंपटीशन होगा, सब में सबको हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, लेकिन याद रखो सिर्फ 2 को इनाम मिलेगा। का ठीक है, कंपटीशन बहुत हुआ, 99 लोग जीतने से कम उस एक को हराने के पीछे पड़े थे। उधर भी 99 लोग जीतने से कम
एक को हराने के लिए थे। इत्तेफाक ये हुआ, स्टेज सजा, मुमतहिन आया ऐलान करने के लिए। उसने ऐलान किया नतीजों का इस हल्के का जो एक वही फर्स्ट, इस हल्के का एक ये सेकंड। इनाम कितने थे? किसमें बटे? एक इसमें एक इसमें। अब स्टेज पे बुलाया गया, इधर से पहला, इधर से दूसरा। इसने उसको देखा, समझ गया अपना है, मुस्कुरा कर कहने लगा तुम भी जीत गए। इसने भी मुस्कुरा कर कहा तुम भी जीत गए। उसके बाद दोनों ने इनाम लेकर मजमे के तरफ रुक करके कहा हम जीत गए। तो उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा हमें ये हराना चाहता था, हमें ये करना चाहता था, दुश्मनी निकालना चाहता था। बस अवार्ड लेकर मुस्कुरा देना ही काफी होता है। सामने वालों को जलील करना है तो तुम्हारा मुस्कुराना ही काफी है। तो खदीर में खाना भी खिलाओ, ज़ियारत भी करो, लेकिन अगर विलायत रखकर एक दूसरे से देख भी लो तो मुस्कुरा देना यही इबादत है। यानी जुमलों को कहूं, अपनों में हंसना तवल्ला है और दूसरों में हंसना तबर्रा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवा पढ़ मोहम्मद वाले। लिहाजा अजीजों, जितना हो सके 10 मुहर्रम करीब है, तबर्रा कीजिएगा, तकल्लुफ न कीजिएगा। इसलिए कि तबर्रा पाक इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में की जाती है, और इबादतें दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ अजीजों, दूसरे को दिखाने का नाम इबादत नहीं है। अहले बैत से तकर्रुब का नाम इबादत है। और जितना हो सके शीयत के वक़ार को बुलंद कीजिए। मैं क्यों ये लफ्ज़ कह रहा हूँ अजीजों, हम 2 महीने 8 दिन को छोड़कर मुसलमान कभी नहीं बता सकते इसमें शिया कौन है, चुनिंदा मकामात में। लेकिन 2 महीने 8 दिन के अंदर हमारे ये सिया लिबास हमारी शीयत का ऐलान करते हैं। जो इस्लाम की हकीकत भी नहीं जानते वो इतना ज़रूर कहते हैं ये मातम और पीटने वाले, रोने वाले हैं। जानते हैं ना अजीज़ों। हमें मिसाल दे के बात को तमाम कर दूं। मसाहिब की तरफ आ रहा हूँ अजीज़ों, मिसाल गौर से जुमला सुनिएगा। मेरे जवान भाइयों से, छोटे भाइयों से याद रखिए, कभी कोई ग्राउंड में, कभी बाजार में आपने अमामे के साथ किसी को देखा? कहते हैं नहीं। मौलवी से मिलना है, जाकिर से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? कहा अमामे वाले से मिलना है तो मस्जिद जाओ, मदरसा जाओ, आशुर खाने जाओ। ना वो बाहर नजर आने वाला, ना चौराहों पर घूमने वाला, न गैरों के साथ उठने बैठने वाला। मुतवज्जे रहिएगा। इस्लाम को बताएगा कौन? कब वो जो गैरों के साथ उठता बैठता भी हो, आम रास्तों पर चलता भी हो, आम मकामात पर जाता भी हो। अब आपके सामने दरख्त है, अगर दरख्त की जड़ काट कर आपको दी जाए और कहें बता किस दरख्त की है, सूंघेंगे। मुमकिन है सही बताएं, मुमकिन है गलत बताएं। लेकिन अगर दरख्त की शाख टहनी से पत्ते उतार कर दी जाए, बताए किस दरख्त की है, सूंघेंगे। मुमकिन है सही, मुमकिन है गलत। इश्तिबाह जड़ में भी हो सकता है, बताने में, शाखों में भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी दरख्त का पत्ता हो, का पत्ता देखकर इंसान दरख्त बताता ये नीम के दरख्त का है, ये बरगद के दरख्त का है,
ये अमरूद जाम के दरख्त का है, ये आम के दरख्त का है। का क्यों? का पत्ता दरख्त का पता बताता है, पत्ता दरख्त का पता बताता है। और अगर पत्ता हरा भरा हो तो दरख्त की ताजगी बताता है, और अगर पत्ता पीला हो तो दरख्त की कमजोरी बताता है। हजीजों मुतवज्जे रहिएगा, नबी फरमाते हैं हम इस्लाम के तमाम शिया और मुसलमान एक दरख्त के मानिंद है। जड़ नबी है, शाखें अली है, फातिमा ज़हरा उनकी औलाद है, और उस दरख्त के पत्ते हमारे शिया है। अब आपका किरदार देखकर तालीम आले मोहम्मद समझ में आएगी। जैसे पत्ते को देखकर दरख्त का पता चलता है, आपके किरदार को देखकर इस्लाम समझ में आता है। तो इन काले कपड़ों का ख्याल रखना, इससे वो सीरत समझ में आए इसको देखकर कहे ये अली वाला है, ये हुसैन वाला है, ये हसन वाला है। अपने किरदार को बुलंद करें। कहा क्यों? शीयत फख्र के लिए। इसीलिए इमाम ने कहा तुम हमारे लिए बाइसे जीनत बनो, बाइसे नंगवार न बनो। लिहाजा अब अपनी बात को ख़त्म करते हुए अजीज़ों, शरीयत बड़ी दकीक है, एहतराम कीजिए सबका। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान इकरामी, मैं रुक रुक कर मसाइब पढ़ूँ, ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे आशूर के लिए। 2 दिन 2 रात ऐसी है जिसके गुजरने के बाद वो दिन नमूदार होगा जिसमें फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। अजीज़ान गिरामी, आप रोने के लिए आमादा है। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मक्तल जनाब कासिम पढ़ने से पहले इतना बता दूं, रिवायतें कहती है इदा बकल यतीम इख्शाअर आश, अगर कोई यतीम रोता है तो अर्श खुदावन कांप उठता है, आवाज़ आती है कोई है जो यतीम को खामोश करा दे। और अगर कोई यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरता है, जितने हाथ के नीचे बाल आते हैं अल्लाह उतने गुनाह माफ़ कर देता है। यतीम के लिए डांटो मत, उसे झिड़को मत, यतीम का ख्याल करो, यतीम को रोने न दो। अजीज़ानी गिरामी, शब आशूर है, हर माँ अपने अजीज़ बेटों को समझा रही है, लेकिन बेवा माँ उम्मे फरवा कासिम को अपने आगोश में लिटा कर कहती है कासिम तुम अपने आप को तन्हा न समझना कासिम, तुम्हारी माँ के पास यही सब कुछ ज़ख़ीरा है बेटा, सरमाया है कासिम जाना। अजीज़ों, कौन सी ऐसी माँ है जो हुसैन पर फ़िदा अपने बच्चों को न किया हो। उस बीवी ने अपने यतीम से कहा बेटा जिंदा जाना जिंदा। कासिम ख्याल रखना। अभी माँ गुफ्तगू फरमा रही है जनाब कासिम से, कुछ आवाज़ें बुलंद हुई। जनाब कासिम खैमे के बाहर आए तो क्या देखा, इमाम हुसैन असहाब और अहले बैत के साथ तशरीफ़ फरमा आए हैं। जनाब कासिम इमाम हुसैन के करीब आकर कहते हैं चचा जान खैर तो है। तो किसी ने गुफ्तगू में कहा हम गए अपना मकाम शहादत देख कर आए हैं। हुसैन ने बता दिया हम वहाँ शहीद होने वाले हैं। सब ने बता दिया तो फौरन जनाब कासिम कहते हैं चचा आपने सबको मकाम बताया,
क्या मुझे मकाम न बताओगे? हुसैन बैठ गए, पहलू पर कासिम को बिठा लिया। कहा कासिम खैर तो है? कहा चाचा अभी कुछ लोग गुफ्तगू में कहने लगे। कहा कासिम सब्र करो। तो किसी ने कहा अली असगर भी शहीद होगा। जैसे ही ये सुनना था जो कासिम पहलू पे बैठे थे खड़े होकर कहते क्या चाचा जान दुश्मन खैमों में चले आएंगे? अल्लाह अकबर। कासिम को सीने से लगा लिया। कासिम बैठो बेटा। कासिम को पहलू में बिठा लिया। कासिम मौत तुम्हारे नजदीक कैसे है? कहा चाचा जान शहद से ज्यादा शीरीं है। उसके बाद कहा सीने से लगा कर कहा सब्र करो कासिम। कुछ बयान न दिया। सुबह नमूदार हुई। जैसे ही आशूर का दिन नमूदार हुआ हबीब का हुसैन लाशा लेकर आए। कभी सईद का लाशा लेकर आए, कभी ज़ुहैर का लाशा लेकर आए, कभी इब्ने बजली के लाशे लेकर आए, कभी असद इब्ने हंजले शबाबी का लाशा, कभी मदारिब का लाशा। असहाब के लाशे देखते गए। जनाब कासिम इधर देखा उधर देखा। आकर कहते हैं अम्मा सबके लाशे आ रहे हैं। कहा जाओ कासिम अपने चचा के पास जाओ। कासिम गए। अजीज और रिवायत का जुमला है, कहते हैं जैसे ही कासिम गए हुसैन खेमे में मौजूद थे। कासिम आगे बढ़कर कहते हैं चाचा मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही कहा हुसैन ने कासिम को देखा। कहा क्या चाहते हो कासिम? कहा चाचा मैं रुखसत होना चाहता हूँ, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। हुसैन ने सीने से लगाकर कहा कासिम तू मेरे भाई की निशानी है। कासिम तुझे मैं जाने कैसे दूं? इतना कहना था। अभी तो कासिम ने हुसैन के हाथों का बोसा लेने लगे। बाद रिवायत कहती है पैरों पर गिरकर यतीम कहता है चाचा इजाजत दीजिए। अल्लाह। जनाब कासिम और हुसैन इब्ने अली ने इतना गिरिया किया फगोशिया अलैहिम, दोनों पर फगोशिया अलैहिमा, दोनों पर गश्तारी हुआ। अजीज़ो तरीक़ा क्या होता है जब किसी पर गश्तारी होता है उसको कैसे जगाया जाता है? पानी की ज़रूरत है। पानी मौजूद तो था नहीं। ज़ैनब आई है, बीबी रोने लगी है। ज़ैनब के आंसुओं पर हुसैन ने आंखें खोली। कहा मजाए खैर तो है? कहा मेरा कासिम। कासिम इजाज़त नहीं दूंगा बेटा, भाई हसन की निशानी हो। कहा जाओ अपने खेमे में चले जाओ। जनाब कासिम अपने खेमे में आना चाहते हैं लेकिन एक तरफ माँ है जो रात से कह रही है अपनी जान निछावर कर दो, एक तरफ चचा है जो जाने नहीं देता, इजाज़त नहीं देते। तो रिवायत ये है दोनों खेमों के दरमियान कासिम बैठ गए, अपने सर को घुटनों पर रख दिया, रोकर कहते बाबा ये यतीमी भी क्या चीज है मेरे बाबा, मुझे जाने नहीं देती। इतना कहकर अभी बस आंख बंद की है। हसन मुश्तबा आए, कहते कासिम बाजू पे जो ताबीज हो खोल लो बेटा। कासिम ने आंखें खोली, ताबीज को खोला, खत को पढ़ा, खुशी से उठे। चाचा जान। हुसैन ने कहा क्या बात है? चाचा बाबा का खत है। हुसैन खत को लिया, भाई का नाम देखा, आंखों से लगा लिया, सर से लगाकर कहते हैं कासिम। रिवायत ये मजमून कलाम तावीज़ में ये था हुसैन जब तुम आलम तन्हाई में हो, आलम तन्हा हो और मुसीबत चारों तरफ से घेर ले तो हुसैन मैं तो नहीं रहूँगा लेकिन मेरे बेटे कासिम को इजाज़त दे देना, ये मेरी तरफ से तेरे लिए भाई कुर्बानी है। इतना सुनना था। हुसैन ने कासिम को देखा, कासिम जाओ तैयार हो, माँ से अलविदा कर लो। कासिम गए। रिवायत ये माँ ने फौरन सीने से लगा कर कहा कासिम जाओ। अरे आए, हुसैन ने कहा करीब आओ। संदूक तबर्रुक खोला, हसन
लिया, सर पर रखा, रबा पहनाई और एक ऐसा लिबास अरे पहनाया जो चारों तरफ से फैला हुआ था। अल्लाह अकबर। अजीज, आदाब जंग ये है कि लिबास तंग होना चाहिए, बदन से चिमटा होना चाहिए, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने जो कासिम को लिबास पहनाया वो फैला हुआ था। अल्लामा इस्माइल यज़ीदी कहते हैं क्यों? का हुसैन जानते थे कि कासिम पर गुजरेगी क्या, लाशा बिखर ना जाए। अल्लाह अकबर। कासिम को लिबास पहनाया। मौला अबुल फजल अब्बास ने कासिम के बाजुओं को पकड़कर सवारी पर सवार करवा दिया। कासिम लेजाम थामे। अजीज जुमला सुनिएगा। कहते चाचा इजाजत है? कहा कासिम रुक जाओ। फिर कासिम को उचारा। अजीज जुमलों को सुनना, मैं इससे ज़्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सेहत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन जुमले सुनिएगा अजीजों। हुसैन ने कासिम को उतारा, जो अम्मामा था उसके दो हिस्से किए, तहतुल हनक। कहा क्यों? आपने मरसिया सुना है ना, कासिम जो हमशबीए जनाबे अमीर था, कासिम का चेहरा अली से मिलता था। एक कपड़ा पेशानी पर बांधा, उसी अमामे के दूसरे कपड़े को नाक पर रखकर बांध दिया ताकि चेहरा जाहिर ना हो। उसके बाद कासिम को सवार किया, फिर कासिम आगे बढ़े। इमाम ने कहा कासिम रुको, फिर कासिम रुके। कहा चाचा खैर तो है, तो एक मर्तबा दी दो। कयामत का काम हुसैन ने किया। एक मर्तबा करीब गए, कासिम का गरेबान चाक कर दिया। कहा क्यों? का अरब में जंग का दस्तूर था, जिसका गरेबान चाक हो उस पर ज्यादा जुल्म नहीं किया जाता, क्योंकि यतीम है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अरे गरेबान चाक, अरे कासिम गया है। अल्लाह अकबर। जैसे जनाबे कासिम गए, अजीजों तीर चलने लगे। जनाबे कासिम रजस पढ़ते गए, वार करते गए। अर्दक शामी की औलाद को खुद उसके साथ वासिले जहन्नम किया। लेकिन अजीजों रिवायत यह है, पिसरे साथ से जाकर किसी ने कहा एक बहादुर आया है, और दूसरा कहता नहीं नहीं अभी उसके पैर रिकाब में नहीं आते। अजीजों जुमला सुनना, का चारों तरफ से घेर लो, जितना पत्थर मार सकते हो, तीर मार सकते हो, कासिम पर तीर पत्थर बरसाओ। एक छोटे से शहजादे पर चारों तरफ से तीर चले, पत्थर चले। अल्लाह। दो काम एक वक्त में किए गए। अजीजों मैं कैसे बयान करूं, गौर से जुमला सुनिएगा। एक वक्त में कासिम इब्ने हसन के साथ दो काम किए गए। का क्या? का कासिम जब लड़ रहे थे, पहला काम यह था, किसी मलून ने यहया इब्ने अशअस ने भाला लिया, कासिम के पहलू पर जैसा ही भाला मारा, कासिम संभालना चाहते हैं, मलून ने गुर्ज लिया, कासिम की कमर पर गुर्ज। अल्लाह कासिम ने आवाज दी, या मादरिकनी। कासिम गिरे। अभी तो अब जो मुसीबत बयान कर रहा हूं, खुदारा हाथ खाली ना रखना। एक यतीम का मातम कर लो, हसन तुम्हें गरीब होने ना देगा। एक यतीम का मातम करो। जब कासिम गिरे, अमामा निकला, तो मलून ने देखा, अरे आओ आओ, इसका चेहरा अली से मिलता है। खंजर लिया, आगे बढ़ा। हुसैन ने कहा अब्बास जल्दी चलो, अरे लश्कर।
रिवायत ये है जो भी शहीद सवारी से जमीन पर आया, अगर उसके सामने से कोई मुसीबत आती तो वो अपनी जगह बदलना चाहता, हरकत देना चाहता, लेकिन रिवायत यह है जैसे कासिम गिरे हरकत ना दे सके। कहा क्यों? का गुर्ज लगने से कमर टूट चुकी। अब अंदाजा लगाओ अजीजो, जैसे गिरे, अरे लश्कर में आओ बाला 1300 घोड़े, इधर से उधर, उधर से इधर। कासिम ने आवाज दी, चाचा आइए, चाचा आइए। हुसैन दौड़ कर आए, लेकिन जुमला सुनना, हुसैन की गुर्बत में शरीक हो। कहते हैं हुसैन हर शहीद के पास उस वक्त पहुंचे जब जान बाकी थी, लेकिन कासिम के पास हरकत ना थी। हुसैन ने कहा, ए कासिम मेरे यतीम, जुमला सुनना। हुसैन ने आबा बिछा दी, कासिम को जमा किया। अल्लाह पर तवज्जो, जो उठाया नहीं, उठाया नहीं, जमा किया है। अरे एक मर्तबा रिवायत है चादर में रखा, जम्मा सदर हो इला सदर, कासिम का सीना अपने सीने के साथ हाथ गिर गया। अरे कासिम हाथ गिर गया, हुसैन ने चादर में कासिम को लपेटा, आवाज दी, ज़ैनब मेरा कासिम, ऐ मातम करो। कुबरा ने कहा कासिम किस सुने बन में सोते हो, बचपन का रड़ापा देखो जरा, किस सुने बन में सोते हो। कुबरा ने दूल्हा किस सुने बन में सोते हो, पाज़ेब की जा बेड़ी है बंधी, कंगने के ये वज रस्सी है बंधी, क्या खूब बनी का हाल बना, क्या बनी का हाल बना, किस सुने बन में
में सोते हो। थामा था जो तुमने हाथ मेरा, देना था साथ मेरा, एक शब की बनी से हो के खफा, शब की बनी से हो के खफा, किस तूने बन में सोते हो। देखो तो जरा हम शान अली, ये मांग हमारी खाक भरी, किससे मैं करूं किस्मत का गिला, से मैं करूं किस्मत का गिला, किस सूने बन में सोते हो। हो जाता था शौकत हश्र बापा, हिलती थी जमीने कर्बो बला, कहती थी जो रो कर वो दुखिया, थी जो रो कर वो दुखिया, किस सूने बन में सोते हो। कुबरा ने कहा कासिम दूल्हा, किस सोने बन में सोते। हाय 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 हाय। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमत अज़-ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल-मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, या मोइन ज़ुफ़ा अल-फ़क़रा, अस्सुल्तान या अबुल हसन, या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल असर व ज़मान, अल-अमान अल-अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान। अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।